Are you trying to tell me that what the Prime Minister said in 2014 in Lok Sabha, 1200 years of slavery, forget about that, he's very weak in mathematics. The Muslim rule was only for 450 years. He talked about 1200 years of slavery, so who should move on? Are you trying to tell me that the killings of Mahatma Gandhi should be forgotten? Let us move on. Are you trying to tell me that the butchering and genocide of Sikhs in 84 should be forgotten and moved on? Are you trying to tell me that 6 December 1992 should be forgotten and moved on? Rajdeep, what do you want from me as a community, as Indian Muslim? I'll tell you what I want. Where do you want me to move on? Forget about 2002 Gujarat. You should not ask this question to me because I am not responsible for the demolition of Babri Masjid. I am not responsible for the communal riots which took place in the streets of Mumbai. Do you want validation of Asauddin Owaisi for this, for tomorrow? What else do you want from me? Why is it that you always put me as a Muslim, as an Indian Muslim on a pedestal? Move on. Where do you want me to move on? Rajdeep, I am in abyss. Where do you want me to move on? Please tell me. I cannot move on further. You, people like you, people who aspire to this Hindutva ideology, where do I move on? You have suffocated me. What happened to all those secular parties? Hindu, Muslim or communal amity can only happen if the constitution is followed in principle and implemented in toto. Simple. Forget about all these flowery statements by Rajdeep Sardesai. What happens on the ground is important. Where are these secular parties now? Why are they quiet now? From 2014 onwards, in the name of love jihad, in the name of cow protection, in the name of Citizenship Amendment Act, what do you want? Who's raising a voice? Lawyers, journalists, everyone has been put in prison. All the voices have been scuttled. People have been put in prison for only dissenting. And you tell me, move on. Where do I move on? Is there a space to move on, Rajdeep? Please tell me. There is no space to move on apart from fighting in a... अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। देखिए आपने ये बकवास अवैसी की और राजदीप की। पहले तो मैं ज़रा राजदीप को बता दूं कि वो क्या कर रहा है। वो फसाद फैला रहा है, वो नफाक फैला रहा है। नफाक मीन्स डिफ्रेंशिएट करना, कम्युनल डिवाइड करना। वो एक पॉइंट ऑफ व्यू को मुसलसल रखे जा रहा है क्योंकि इनकी तरबियत है। अभी एक साहब का फ़ोन आया था मुझे 10 मिनट पहले कि लंदन से बाहर कहीं वो रहते हैं, तो वो कह रहे थे हम एक जगह, एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी जहाँ पे इंडियन ऑफिशियल्स भी बैठे हुए थे, सब थे वहाँ। नक्शे में से कश्मीर को इंडिया से काट के दिखाया गया था अलग से, और एंटी इंडिया चीज़ें वहाँ पे बातें डिस्कस हो रही थी। तो बोले हम मुजाहरा कर रहे थे और हम ऑफिशियल्स को भी कह रहे थे कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, जवाब नहीं दे रहे हो, ये वो। तो मैं उनको भी यही बता रहा था कि देखें भाई साहब, इस देश पे 50-60 साल एक पार्टी ने हुकूमत की है। वो अपीजमेंट की पॉलिसीज़ को शुरू से लेके चलते आ रहे थे। याद होगा आपको, नेहरू जी के ज़माने से ये चीज़ें चल रही हैं। प्री पार्टीशन की बात हो रही है कि प्री पार्टीशन में भी नेहरू जी मुस्लिम अपीजमेंट में मुसलसल लगे रहते थे। तो वही तरबियत फिर ब्यूरोक्रेसी की, फॉरेन सर्विस की, मीडिया की हुई है। हम तो भाई 25 साल से जिनीवा में देखते हैं ना इंडियन डिप्लोमेट्स को, इंडियन सिविल ब्यूरोक्रेसी को, या इंडियन सिविल सोसाइटी जो आती है, NGOs वगैरह जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, वो ज़्यादातर JNU के होते थे, या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के होते थे, या जामिया मिल्लिया के होते थे। वही प्रोफेसर्स आते थे, वही डॉक्ट्राइन जो एक आपकी जो चली आ रही थी, एक लेगेसी की, वो कंटिन्यू हो रही थी। तो राजदीप उसी प्रोडक्ट का एक आखिरी जो रह गए हैं ना चीज़ें, वो आखिरी प्रोडक्ट का हिस्सा है। वो अभी तक पर फड़फड़ा रहा है। वो ऐसे ही लोगों के नैरेटिव्स को बढ़ा चढ़ा के आगे पेश कर रहा है, हाथ जोड़ा है, इनके आगे खड़ा हुआ है। ये है जी वो एपोलॉजेटिक हिंदू, जिसको निकालना है उस खौफ से, उस सदियों की गुलामी से बाहर निकालना है। ये लोग निकलने को तैयार नहीं हो रहे। ये आज भी उसी कॉलोनियल पीरियड में रह रहे हैं और ये अवैसी को ऐसे ही समझ रहे हैं जैसे औरंगज़ेब के दरबार का अवैसी कोई अमीर है और उसकी ऐसे ही रेस्पेक्ट की जाती है, वरना ये गुंडा है, मवाली है।
और इसके पास ये बेशरम लोग हैं, ये ख़ास तौर पे ये दो भाई हैं ना, बेशरम है, मैं तो खुल के कह रहा हूँ। इसकी वजह ये है कि ये झूठ बोलते हैं। इस आदमी की बदकिस्मती ये है कि ये सर पे टोपी पहन के दाढ़ी रख के मुसलसल झूठ बोलता है, ये बेशरम आदमी है। अगर ज़रा भी इसमें गैरत होती ना तो इसका रवैया ये होता कि ये जब भी किसी इंडियन हिंदू के सामने जाता, ख़ास तौर पे मीडिया में, तो ये यूं होना चाहिए इसको, और इसको माफ़िया मांगनी चाहिए। जो 500 साल 600 साल इसकी कौम ने इस कौम के ऊपर जो जुल्म किए हैं, उसके ऊपर मैं कह रहा हूँ, मेरी कौम ने, वो इसको डिनाई कर सकता। आज कह रहा है वी डोंट हैव स्पेस, वो स्पेस बंद तुम लोगों ने किया है। इस मुल्क में रहने वाले 20-22 करोड़ मुसलमानों के लिए दरवाजे तुम लोग बंद कर रहे हो, वो स्पेस ख़त्म तुम लोग कर रहे हो। ना करो ऐसा। इस देश का मेजॉरिटी मुसलमान वो नहीं चाहता जो तुम चाहते हो। तुम तो इसलिए चाहते हो कि तुमको इसके बदले में हलवे मांडे मिल रहे हैं। तुम तो अपनी हलाल का कर रहे हो अपनी रोज़ी को, क्योंकि जिसका खाते हो उसी का गाते हो। तुम कहते हो कि हम कहाँ जाएं, तो हम कहाँ जाए के बच्चे, तो वो क्यों बनाया था पाकिस्तान तुम लोगों ने? वापस कहोगे कि हमने नहीं बनाया था। अबे बना के सस्टेन भी तुम लोगों ने किया था। निज़ाम हैदराबाद तनख्वाहें देता रहा है कितने अरसे तक पाकिस्तान के सिविल ब्यूरोक्रेसी को, कायदे आज़म को खजाना भर भर के दिया है तुम्हारे निज़ाम हैदराबाद ने। तुम कह रहे हो तुम लोगों ने नहीं बनाया, जाओ उधर फिर, अगर तुम लोगों को यहाँ पे स्पेस नहीं मिल रहा। वरना इसी देश में डॉक्टर अब्दुल कलाम को स्पेस नहीं मिला क्या? हाईएस्ट स्पेस दिया उनको इसी कौम ने। आज भी है ना। अब तुम कहोगे कि ये हिंदुओं की चमचागिरी कर रहे हैं जैसे मैं कर रहा हूँ, तो अब तुम लोगों का मसला ये है कि आज तक हिंदू अपने हक के बारे में बात ही नहीं कर रहा था, तो तुम लोग ये समझ रहे थे कि ये लोग तो फारिग लोग हैं। तुम लोग ये समझ रहे थे कि इनके कोई हुकूक नहीं है, इनके कोई रिलीजियस सेंटिमेंट्स नहीं है, इनकी कोई जायज़ ख्वाहिशात नहीं है। तुम लोगों ने टेकन फॉर ग्रांटेड एवरीथिंग को लिया हुआ है। तुमको शर्म आनी चाहिए। तुम कहते हो इस कॉन्स्टिट्यूशन पे जब तक हम 100% बिलीव नहीं करेंगे, तो ये अयोध्या राम मंदिर क्या था? अदालत का फैसला नहीं था। एक ऐसा फैसला जिस पे किसी ने एतराज नहीं किया कि हाँ गलत था। सिर्फ तुम लोग एक ही रट, वहां मस्जिद थी। अबे उस मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं था। इस झूठ को झुटला के तुम किस मुंह से ये दाढ़ी रख के और अल्लाह का नाम लेके फिर तुम झूठ पे झूठ बोल रहे हो? वह मस्जिद उस वक्त तस्वुर की जाती, अगर वहां पे मस्जिद के नीचे कुछ ना होता, वो मस्जिद लीगल जमीन पे बनाई गई होती। मुझे तुम इस्लाम का कोई एक फिक्का दिखा दो जिसमें यह कहा गया हो कि मस्जिद नाजायज जमीन पे जायज है, हलाल है। किसी फिक्के की कोई वो दिखा दो। तुम मुसलमानों को गुमराह किए जा रहे हो सिर्फ अपनी हलाल करने के लिए। तुम कह रहे हो बार बार, तुम 2002 याद दिलाते हो। 2002 की पूरी तारीख खोल के बैठो ना। और मैं इस राजदीप को चैलेंज करता हूं कि जब इसको बिठाते हो तो लाओ मुझ जैसे आम आदमी को बिठाओ जिसका कोई स्कॉलरशिप, मैं कोई स्कॉलर नहीं हूं या मैं कोई बड़ा आलिम फाजिल नहीं हूं। ये तो बहुत बड़े आलिम बनते हैं। बिठाए ना मुझे इनके सामने। ये छुप के एक कमरे में इसको बंद करके तुम अपोलोजेटिक हाथ जोड़ के इससे जवाब ले रहे हो। तुम उल्टा इसको अपना जहर फैलाने का मौका दे रहे हो। तो हम तो जहर भी नहीं फैला रहे, हम तो जायज बात कर रहे हैं, सिंपल सी बात कर रहे हैं। दलाइल के साथ तुम लोगों को बता रहे हैं। ये कह रहे हैं मूव ऑन कैसे करें? ऐसे मूव ऑन करो जैसे ये हिंदू कम्युनिटी ने किया, जिसका आगाज हुआ मुल्तान, दीबल, कराची पे हमला करके तुम्हारे मोहम्मद बिन कासिम ने। हिंदू मूव ऑन हुए उधर से। फिर महमूद गजनवी ने 17 हमले किए। कभी कंडेम किया तुमने? इस देश पे 17 हमले हुए हैं, तुमने कंडेम किया कभी? अगर तुम इतने बड़े हिंदुस्तानी बनते हो, मसला यह है कि तुम्हारे जहन में कीड़ा नहीं है, कीड़े हैं गजवाए हिंद के जो निकालने पड़ेंगे। और निकाले जा रहे हैं अब। जब भी तुम लोगों को तकलीफ हो रही है, क्योंकि ये कीड़ा होता है ना, ये भी एक एडिक्शन है। वो तुम लोगों को उन कीड़ों के बगैर मजा नहीं आ रहा, वो हर जगह से घुस गए हैं तुम्हारे अंदर। अब वो कीड़े निकालने का वक्त आ गया। तुम्हारी अपनी कम्युनिटी, हमारी अपनी कम्युनिटी अब समझ चुकी है चीजों को। तुम लोगों का खेल साफ नजर आ गया। तुम लोग शिकस्त खोरदा हो, डिफीटेड फोर्सेस हो।
तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन तुम लोगों का नजर आ रहा है। ये जो तुम्हारे सामने अवैसी जो तुम्हारे सामने जर्नलिस्ट बैठा है उसका देख लो, उसकी बीवी का देख लो, तुम लोगों का देख लो, फ्रस्ट्रेशन नजर आ रहा है। राणा को देखा है, सभा को देखा है, तुम सब तड़प रहे हो क्योंकि अब तुम लोगों को पता है कि तुम लोगों का वो खेल, वो बादशाही खत्म हो रही है। जो तुम कम्युनल डिसहार्मोनी फैला के जो चला रहे थे अपनी दुकानदारियां, अब वो आस्ते आस्ते बंद हो रही हैं। क्योंकि मैं तो ऐसे कई कश्मीरियों को भी जानता हूं ना, जो महाराजा की तरह घूमते थे कि हाँ जी आर्टिकल 370, ऐसी 370 ने इनकी बजाई है कि बोलतियां बंद हो गई हैं। इनके पास अब इशू ही नहीं रहा, क्योंकि ये जो चूरन बेचते थे ना, ये मंजन जो बेचते थे, वो मंजन अब एक्सपोज हो चुका है। टूथपेस्ट का ज़माना आ गया है। चूरन की जगह वो रेनी दवाई आ जाती है डाइजेशन के लिए। अब वो चूरन भी कोई नहीं खाता। अब वक्त बदल गया है। आज का इंडियन, तुम जिसको हिंदुत्व कहते हो ना, वो अपने हिंदुइज्म पे पहली बार प्राइड फील करते हैं और कुछ नहीं है। कोई एक हिंदू ने ये नहीं कहीं कहा मुझे, मैं तो इतना सोशल मीडिया पे देखता हूँ, जो ये कहता हो कि नहीं हम इस देश में इस्लाम नहीं चाहते, मुसलमान नहीं चाहते। लेकिन तुम जैसे मुसलमान ऐसे मैंने 50 देखे हैं जो कहते हैं कि ये इंडिया विल बी मुस्लिम और हम मुस्लिम इंडिया बना के रहेंगे और पूरे इंडिया में इस्लाम का झंडा गाड़ेंगे। ये तुम जैसों की सोच है जो अक्रॉस द बॉर्डर से आ रही है। और उसमें बदकिस्मती से कि इंडिया की एक इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी भी उसमें अपीजमेंट के चक्कर में लगी रहती है। झूठ की पॉलिटिक्स, नफरत की पॉलिटिक्स, डिवाइड करने की पॉलिटिक्स तुम लोग करे जा रहे हो। लेकिन ये एक आदमी आया है जिसने यूनाइट किया है सबको। तुम्हारे अपने राजदीप, तुम्हारे अपने वो जो अभी पोल किए थे परसों पूरे इंडिया से, मैं देख रहा था तुमको और राजकमल को, जब वो रिजल्ट आ रहे थे पोल के, तुम लोगों के चेहरे वो लटक के जमीन पे चले गए थे। तुम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पप्पू साहब कुछ पोल में रिजल्ट अच्छे ले आएंगे। यहाँ तो हर चीज़ मोदी जी मेजॉरिटी के साथ। तो यूनाइट किया है ना, डिवाइड तो नहीं किया। जो थोड़ा बहुत उधर अवैसी टाइप के लोगों ने अपना वोट बैंक बना कर रखा हुआ है, कुछ और लोग हैं जो मुसलमान नहीं है, हिंदू हैं, लेकिन वो अपने वोट बैंक के चक्कर में, उन लोगों की सियासत अब ख़त्म है। फिर ये सुशांत सिंह राजपूत के जो केस चल रहे हैं और इस टाइप की चीज़ें, इंडियन नेशन यूनाइट हो रही है। और इसमें मैं कहीं नहीं कहूँगा कि ये हिंदूज हैं। इसमें कई तो ऐसे हिंदू थे जो प्रैक्टिसिंग बिल्कुल नहीं थे, जो धर्म से दूर चले गए थे। आज मैं देख रहा हूँ कि तुम लोगों की वजह से वो वापस उस धर्म के साथ उनका अटैचमेंट बढ़ रहा है। दिस इज द न्यू राइजिंग ऑफ इंडिया। वो तुम जैसों के लिए बहुत बुरा है। अब तुमको तो स्पेस नहीं मिलेगी। तुम कह रहे हो ना मुझे स्पेस चाहिए, तो कहाँ है स्पेस? हमारे लिए नहीं छोड़ी। तो वो नफरत की स्पेस खत्म होती जा रही है। इधर वो नफरत की स्पेस बिल्कुल बंद होती जा रही है। अब तुम लोगों के लिए कोई रास्ता इधर बचा नहीं है सिवाय इसके कि इस हकीकत को मानो कि ये तुम्हारा देश है। और ख़ास तौर पे इंडिया के मुसलमानों को मैं नहीं कहता कि तुम लोग अपोलोजेटिक रहो और तुम लोग माफ़िया मांगो, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये रियलाइज़ करो कि इस देश के लिए मुसलमानों ने कोई ऐसा पॉजिटिव किरदार नहीं अदा किया 500 साल में। इस देश में मुसलमानों का रूलिंग क्लास रहा है जिसने रुथलेसली रूल किया है इस कंट्री पे। जेनोसाइड्स की लिस्टें हैं, हिस्ट्रियां हैं। एक आध कोई जेनोसाइड नहीं है। चप्पे चप्पे पे इंडिया के जेनोसाइड हुआ है। केरला में भी हुआ है, राजस्थान में कई बार हुआ है, यूपी में हुआ है, बिहार में हुए हैं। कहाँ नहीं हुए? और करने वाले फोर्सेस हिंदू नहीं थे, लेटेस्ट बिंग 89-90। तो मुसलमानों को कम से कम हमें अपना तो देखना चाहिए कि हमारा अपना किरदार क्या रहा है। क्या आज हम इतना बदमाशी से आज तो हमें शर्मिंदा ना भी हो तो एटलीस्ट रियलाइज तो करें ना हम। और किया है, बेशुमार मुसलमान इसको रियलाइज कर रहा है कि नहीं यार बहुत हो गया यार, हम 1.5 इंच की मस्जिद बना के कब तक बैठे रहेंगे। ये 1.5 इंच की मस्जिद से किसी को कोई फायदा नहीं। वो मुझे कोई एक दुनिया का इस्लामिक मुल्क बता दो जो मोहताज ना हो। अमीर से अमीर इस्लामिक मुल्क भी छोटी से छोटी चीज के लिए सो कोल्ड कोट अनकोट काफिरों के मुल्क पे मोहताज हो तुम लोग। क्या फायदा है ऐसी 1.5 इंच की अलग मस्जिद बनाने का?
देखो 1.5 इंच की मस्जिद बनाई थी सिंगापुर ने। सिंगापुर की आबादी मलेशिया से वो आज़ाद हुआ। मलेशिया मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्री। सिंगापुर मलेशिया से 6 गुना छोटा था। मलेशिया की आबादी सिंगापुर की आबादी से 6 गुना ज़्यादा। और आज के दौर में हम देखें तो इस्लामिक कंट्रीज़ में मलेशिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ मुस्लिम कंट्रीज़ में। इसके बावजूद सिंगापुर का जीडीपी 6 गुना छोटा होने के बावजूद मलेशिया से बहुत ज़्यादा है। अलग 1.5 इंच की मस्जिद उन्होंने इसीलिए बनाई क्योंकि वो बड़ी मस्जिद भी आखिर को रहता उधर ही है, वो कहीं नए चीज़ की रिफॉर्मिंग की तरफ जाता ही नहीं है। वो कहता है बस मस्जिद में बैठ के दुआ मांगते रहो, अल्लाह सब कुछ कर देगा। तो ये है तुम्हारी 1.5 इंच की अलग मस्जिद, वो स्पेस जो तुम चाहते हो। तुम स्पेस किस चीज़ का चाहते हो, ज़रा ये तो बता दो। तुम्हारा स्पेस तुम वो चाहते हो जो तुम्हारा भाई कहता है कि 5 मिनट के लिए पुलिस हटा दो ताकि तुम वो करो। और ये कह रहे हैं लव जिहाद को वो किया जा रहा है, यानी तुम्हारी नज़र में लव जिहाद सही है। अबे यार शर्म कर, हया कर। जिस तरह ये लव जिहाद हो रहा है, लड़कियों को बहकावा दे के या ज़बरदस्ती करके या ब्लैकमेल करके वो किया जा रहा है, इसको अगर तुम जायज़ कहते हो और फिर तुम दाढ़ी भी रखते हो और अल्लाह का नाम भी लेते हो, यार तुमसे बड़ा मुनाफिक नहीं देखा। यार तुमसे बड़ा मुनाफिक नहीं देखा, हो नहीं सकता तुमसे बड़ा मुनाफिक। बड़े बड़े मैंने देखे हैं पाकिस्तान में, इंडिया में इतने बड़े बड़े मुनाफिकों में तुमको तो मैं सरताज समझता हूँ, मुनाफिकों का सरताज। और तुम्हारा एक भाई और ये तुम्हारी पार्टी के छोटे बड़े जो घूम रहे हैं। और राजदीप अब वक्त का तकाजा ये है कि तुम भी ज़रा अब कुछ शर्म कर लो, कुछ अपने देश का जिसने तुम्हें बहुत कुछ दिया है, इस धर्म का जिसको तुम मानते हो या नहीं मानते हो, इस देश का मेजॉरिटी मानता है। हैव रेस्पेक्ट, ब्रिंग करेक्ट पर्सपेक्टिव्स ऑफ थिंग्स। ऐसे अपना चूरन कब तक बेचते रहोगे? बहुत नहीं कमा लिया यार। बाकी ये है कि मैं कड़वा बोलता हूँ, कोशिश करता हूँ कि सही बोलूँ। अगर इसमें मैं गलत हूँ तो आ जाओ, तुम्हारे पास तो प्लेटफॉर्म है, मेरे पास नहीं है। या मेरे प्लेटफॉर्म पे तो तुम इतने बड़े आदमी, हमारे प्लेटफॉर्म पे तो आओगे नहीं। तो हम छोटे आदमियों को बुला लो, इतने बड़े बड़े अवैसियों के सामने बिठा दो। मैं इनसे पूछ लेता हूँ टीपू सुल्तान ने क्या किया था, या इस देश पे मुसलमानों के एहसानात मैं इनसे सुन लेता हूँ। और जो इन्होंने किया है, बख्तियारपुर वालों ने किया है, जो अकबर ने किया है, जो इनके मुग़लों ने किया है, जिस पे ये मान करते हैं, किसी कोई भी आ जाए मेरे सामने बैठ जाए, अगर मैं गलत हूँ तो साबित कर दो। उधर तुम्हारे ही चैनल पे बैठ कर माफ़ी मांग लूँगा कि अवैसी साहब गलती हो गई, मैं गलत था। वाकई मुसलमानों ने तो इस देश पे बड़े एहसान किए हैं, ये हिंदू ही एहसान फरामोश है। मैं मान के गलती आगे बढ़ जाऊँगा अगर मुझे कन्विंस कर सकते हो, वरना कुछ शर्म कर लो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय श्री राम।